Bismillah Rahman Rahim, dear students. In last lecture, we started discussion on a very important topic of requirement engineering, and that is called requirement management. So we discussed about the importance and the different activities of requirement management. And today we will continue this topic of requirement management. Uh, in today's lecture, we will focus on three key aspects of requirement management, and these aspects are uh, the version control systems for requirement management, and the requirement identification and the requirement identification techniques, and finally the traceability for requirement management. So these will be the three key aspects of requirement engineering that we are going to discuss in today's lecture. So the first topic is about version control. Version control systems for requirement management. I hope you will be familiar with the generic version control systems that are used during the different phases of software development life cycle. And most of the version control systems are specially used during coding phase. And you know, when a team of peoples is working on one project, especially in a distributed environment, and all are working on the same the project. For example, the project is any uh, web page development kind of project. So when a number of peoples are working on the same project, and they are working on the same module, or they are working on the different modules. This working is on the same project is only possible when you will be using any version control system, because every individual as a whole will be committing what he has been doing or what he has been done, and then software has the intelligence that it is merging all kind of data and all kind of operations that are performed by the different users, and creating actually the versions of the code, or the design, or the requirement. So as a whole, version control systems are very important, and mostly they are used for the coding, especially when a team of people is working on the same product. Then the best possible way is to use the version control systems. So there are number of tools. There are number of tools uh, available that support these this versioning. Either it is code, or these are the
requirements. And there are many open source tools available that support versioning of different activities that are performed by user during the software development. Our focus here, of course, is on the requirement phase. More and more focus is on the requirement phase. As a whole, the generic tools that are developed as version control systems, they are mostly used by the requirement engineers as well. But there are also some dedicated tools that focus more and more on versioning of requirement. So let's continue about this topic, and this is very, very important, and especially the tool support is there. The main thing is that all of this is done through the tools, because when the requirements are very large in numbers, they are in millions, then manually maintaining the versions of requirement documents, and most important is not only the versions of the requirement documents, but the versions of individual requirements. Every requirement may have also different versions. So tool support is must. Without tool support, it's very, very difficult. So let's start. The version controls or the revision controls is a system that manages and tracks changes made to the set of files and requirements. कोड भी हो सकता है और requirements भी जो है हो सकती है. Every version of the requirement needs to be uniquely identified. हर एक जो वर्जन होगा रिक्वायरमेंट्स का, उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो जरूरी है, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी तो लेटर ऑन हम इनको एक्सेस कर सकेंगे. जब यूनिकली आप इनको जो है वो स्टोर जो है वो करेंगे, टूल्स के अंदर स्टोरेज होगी, तो उसके बाद ही फिर जो है आइडेंटिफिकेशन या एक्सेस जो होगी वो पॉसिबल होगी. The last version of the requirement must be available to all the team members. Of course, different versions होंगे, और जो फाइनल वर्जन है वो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सबको अवेलेबल होना जो है वो जरूरी है. अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर समटाइम जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो एक्चुअली जो है वो टास्क एलोकेशन को करता है. वो डिफरेंट यूजर्स को जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट फोल्डर्स को जो है वो एक्सेस देता है. अगर वो चाहे तो वो सबको जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेस दे दे, और अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है वो देना चाहता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड जो है वो एक्सेस होगी. तो एज ए होल फिर जो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा उसकी ऑफ कोर्स जो एक्सेस है वो कह रहा है कि वो सबको जो है वो होनी चाहिए. Changes need to be documented and clearly communicated. यही ब्यूटी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की, कि जो भी चेंजेस आती हैं उनकी एक हिस्ट्री वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो साथ साथ जो है वो मेंटेन जो है वो कर रहे होते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो जितने भी रेलेवेंट आगे लोग हैं उनको कम्युनिकेट जो है वो की जाती है. A version identifier must be updated with every change to the requirement. Of course, मैनुअल काम तो ये नहीं है, इसके अंदर टूल ही जो है वो ऑटोमेटिक जो है जितने भी अपडेट्स वो आते हैं वो डिफरेंट जो वर्जन्स हैं उनको अपडेट जो है वो कर रहा होता है, और आगे डिसएमिनेट जो है वो कर रहा होता है. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स शुड इंक्लूड उसके अंदर रिवीजन हिस्ट्री जिसके अंदर चेंजेस, डेट्स,
किसने जो है वो चेंजेस की, क्यों चेंजेस की, ये भी जो है वो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है लाइफ टाइम बाद में लोगों ने जो है वो काम करना होता है, तो सेम टीम्स तो नहीं रहती ना हमेशा। एक प्रोजेक्ट के ऊपर लोग स्विच हो जाते हैं, टर्नओवर जो है वो होता है, सेम प्रोजेक्ट के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर शेफलिंग जो है वो हो जाती है। और लॉन्ग टर्म में तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, तो इस बेस पे लोग जो है वो टर्नओवर भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग जो है वो स्विच ओवर कर जाते हैं। तो अगर ये रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो होगी, तो कोई न्यू भी जो पर्सन होगा, फिर उसके सामने जो है वो हर तरह की जो है जस्टिफिकेशन होगी कि क्यों चेंज जो है वो की गई थी। तो इसी तरह मतलब रिकॉर्ड कीपिंग इज इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड मार्कर्स फॉर द रिवीजन्स, स्ट्राइक थ्रूज और अंडरलाइन टेक्स्ट, कलरिंग, लाइन मेकर्स, इस तरह के डिफरेंट टैग्स जो है उनकी सपोर्ट जो डिफरेंट टूल्स हैं वो प्रोवाइड जो है करते हैं। अब हर एक टूल्स के अंदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स को जो टूल जो है वो सपोर्ट करते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स से रेलेवेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को जो है वो स्टोर जो है वो करते हैं। तो ये वेरिएशन है, ये अक्रॉस द टूल्स जो है वेरिएशंस है कि वर्जनिंग के लिए कौन कौन से की एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टूल जो है वो स्टोर जो है वो करते हैं। तो ये कुछ की जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं जो मोस्टली टूल जो है वो यूज करते हैं। जैसे वर्जन नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्जन नंबर टैग जनरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द रिक्वायरमेंट वर्जन इज क्रिएटेड। तो हर एक जो रिक्वायरमेंट है उसका अपना एक जो है वो वर्जन है, जब उसके अंदर चेंज होगी तो वो अपडेट होगा और ये ऑटोमेटिक जो है वर्जनिंग होगी। इसी तरह द क्रिएटर ऑफ द रिक्वायरमेंट वर्जन, ऑथर कौन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हु इज द पर्सन जिसने जो है वो अपडेशन की, रिवीजन की, कोई चेंज जो है वो की, कोई चेंज जो है वो की, तो उस चेंज के पीछे उसका ऑथर जो है वो कौन है, ये रिकॉर्ड जो है ये मेंटेन होगा। तो फ्यूचर में इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि पर्सन तक जो है वो पीछे नॉलेज हो जिसने कोई भी वर्जन जो है उसमें अपडेट जो है वो की है। इसी तरह आगे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये कुछ क्रिएटेड ऑन, जिसमें डेट, टाइम, किस डेट को, किस टाइम को रिक्वायरमेंट वर्जन इज क्रिएटेड, ये भी यूजफुल जो है वो इंफॉर्मेशन है जो डिफरेंट टूल जो है वो स्टोर करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह बेस लाइन है, बेस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको नंबर ऑफ टाइम्स हमने जो है वो डिस्कस जो है वो किया है। तो द रिक्वायरमेंट बेस लाइन फ्रॉम विच द रिक्वायरमेंट वर्जन इज इनवर्ड, कि कौन सी पीछे जो है वो बेस लाइन है और उस बेस लाइंस के बाद जो है वो रिक्वायरमेंट वर्जन्स के अंदर कोई चेंज जो है वो आई है। तो बेस लाइन से रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन। इसी तरह वर्जन नोट्स है, द नोट्स एडेड व्हेन द रिक्वायरमेंट वर्जन इज क्रिएटेड। तो ये कोई एडिशनल नोट है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर जो है ऑथर जो है वो देना चाहता है, तो वो नोट्स के अंदर जो है कमेंट्स कोई ऐड जो है वो कर सकता है। तो रिवीजन्स कैन बी रिव्यूड, कंपेयर्ड, मर्ज्ड एंड रिस्टोर्ड। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की ब्यूटी है कि कोई भी चेंजेस और रिवीजन जब आप जो है वो करते हैं तो उनको कोई भी रिव्यू कर सकता है। डिफरेंट जो वर्जन्स हैं, डिफरेंट जो वर्जन्स हैं डॉक्यूमेंट्स के और इवन रिक्वायरमेंट्स के, उनका आपस में कंपैरिजन करना। अब लुक, ये कंपैरिजन मैन्युअली जो है वो बड़ा हार्ड टास्क होता है, लेकिन टूल जो है वो एक वर्जन फॉर एग्जांपल है आपके पास डॉक्यूमेंट का है या रिक्वायरमेंट का है, दूसरा वर्जन है, तो कंपैरिजन का ऑप्शन आप टूल को जो है वो देते हैं, तो वो दोनों को कंपेयर करके जो हाइलाइट्स हैं उनको जो है वो दिखा देता है।
इसी तरह मर्जिंग का जो है वो ऑप्शन है कि डिफरेंट जो वर्जन्स हैं उनमें जो सिमिलर काइंड ऑफ टास्क्स हैं उनको ऑटोमेटिकली वो जो है मर्ज जो है वो कर देता है, जो भी लेटेस्ट जो है वो वर्जन होता है। और इसी तरह इसमें जो है वो जो प्रीवियस वर्जन्स हैं उनको रिस्टोर अगर आपने जो है वो करना है, डू अनडू का यानी ऑप्शन जो है, इस तरह की भी डिफरेंट फैसिलिटी जो है टूल प्रोवाइड करते हैं। अब बेनिफिट्स जो है वो क्लियर हैं जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के हैं एज ए होल सारी फेजेस के लिए, और ऑफ कोर्स वही जो बेनिफिट्स है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फेज है उसको भी सपोर्ट करते हैं या सप्लीमेंट जो है वो करते हैं, जिसमें नो नीड टू मैन्युअली ट्रैक चेंजेस के टूल्स का बेनिफिट ही जो है या वर्जन कंट्रोल का मेजर बेनिफिट ही जो है वो यही है कि हमें मैन्युअली जो है वो चेंजेस को जो है वो ट्रैक करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। इसी तरह रिस्टोर एनी प्रीवियस रिवीजन एट एनी पॉइंट इन द टाइम, कि आपकी जो प्रीवियस रिवीजन्स हैं उनको अगर आपने रिस्टोर जो है वो करवाना है तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है इस टाइप की जो सपोर्ट है ये प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह दे हेल्प मल्टीपल पीपल कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट, ये की पॉइंट है जिसमें पहले भी मैंने बात जो है वो की कि जब किसी भी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेटिव वे से जो है वो काम होता है, एक से ज्यादा लोग जो है वो काम जो है वो कर रहे होते हैं, तो वहां पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक अहम तरीन रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं। स्पेशली जब कोई एक फॉर एग्जांपल पीएचडी का स्टूडेंट है, वो काम जो है वो कर रहा है एक प्रोजेक्ट के ऊपर और उसने अपने साथ कोई एमएस के स्टूडेंट्स को जो है वो लगाया हुआ है, तो वो सारे जो है वो एक ही वक्त में पैरेलल जो है वो काम जो है वो कर रहे होते हैं और उसी उसी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, और जो भी फाइनली जो है वो कमिट कर रहे होते हैं उस बेस पे फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक फाइनल वर्जन जो है वो सबको सिमिलर वर्जन जो है वो शो जो है वो कर रहा होता है। एवरीवन इन द टीम कैन बी श्योर दैट दे आर वर्किंग विद द मोस्ट अप टू डेट फाइल। ये भी एक की जो है वो पॉइंट है कि हर एक को श्योर जो है वो होता है कि वो इस वक्त जो है वो इस वक्त जो लेटेस्ट या अप टू डेट फाइल्स है उनके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि वो तो कोई भी एक भी एक्टिविटी, कोई भी चेंज, एक वर्ड की, कोई करेक्टर की भी कोई भी जो कर रहा होता है तो उसको सिंपली वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसके पीछे एक जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, और जब आप उसको कमिट जो है वो करते हैं तो फिर वो कमिट वाला जो वर्जन होता है वो सबको अगेन जो है वो विजिबल होता है, या डे एंड पे सारे लोग जब कमिट करते हैं तो एक फाइनल अप टू डेटेड जो है वो वर्जन सबके लिए एक ही होता है। शेयर योर वर्क टू द वाइडर ऑडियंस, ये भी एक मतलब जो है वो बेनिफिट है कि आपने अपना कोई भी काम जो है वो बहुत ज्यादा ऑडियंस को जो है के साथ आपने जो है वो शेयर करना है, तो इसमें भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो अब ये अगेन जैसे मैंने शुरू में बात जो है वो की, ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स आर पॉसिबल ड्यू टू द टूल सपोर्ट्स। टूल्स का अहम तरीन जो है वो रोल है, और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के भी टूल्स, बहुत सारे जो टूल्स हैं वो वर्जनिंग के ऑप्शंस उनके अंदर जो है एम्बेडेड है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको लिस्ट डाउन मैंने जो है वो किया है, तो इनमें आप कुछ टूल्स को एक्सप्लोर अगर करना चाहें तो आप जो है वो कर सकते हैं। स्पेशली मैंने एसवीएन को यूज किया था, ये ओपन सोर्स है। जब मैं अपने काम जो है वो कर रहा था, और अभी भी हम कहीं पे कंबाइंड काम जो है वो करते हैं, तो उसमें एसवीएन जो है दैट इज वेरी वेरी फेमस, ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, रिबस्ट है, और बेस्ट मतलब इसकी जो है वो परफॉर्मेंस है। बाकी भी ये टूल्स हैं, बाकी को मैंने नहीं यूज किया हुआ फ्रैंकली, मैंने ज्यादातर जो है वो
SVN को ही जो है वो यूज किया था ड्यूरिंग PhD, और उसके बाद भी जब स्टूडेंट्स के साथ कोई हमने पेपर वगैरह कंबाइंड जो है वो लिखा है, तो उसमें SVN टूल्स को जो है मैंने यूज जो है वो किया है। तो इनमें किसी भी टूल को आप एक्सप्लोर अगर जो है वो करना चाहें तो ये टूल जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह ये IBM रैशनल क्लियर केस है, IBM ने भी इसका वर्जन कंट्रोल्स के लिए ये एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया हुआ है। ये ऑफ कोर्स लिसेंस्ड है, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत सारे ओपन सोर्स मिल जाएंगे। आपने भी मेरा ख्याल है ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स को आप में कुछ लोगों ने जरूर जो है वो यूज पहले से जो है वो किया हुआ होगा। तो ये एक एस्पेक्ट था। अब इसमें डेप्थ में तो हम जाना चाहें तो वो बहुत ही ज्यादा है, इंडिविजुअल टूल्स की फीचर्स को जो है वो शुरू कर दे, लेकिन ये जेनेरिक जो है ओवरव्यू है वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का। अब दूसरा जो एस्पेक्ट है जिस पे आज हम बात जो है वो करना चाहते हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन। ये भी बड़ा अहम जो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर एक बड़ा अहम जो है वो एस्पेक्ट है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई जो है वो कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे हमने करना है, उनको हमने एक्सेस जो है वो कैसे करना है। क्योंकि रिक्वायरमेंट राइट जो है वो वंस जो है वो की जाती हैं, बट दे आर रीड एंड एक्सेस्ड मैनी टाइम्स। अब अगेन अगर आपकी जो स्टोरेज है, अगर आपकी जो स्टोरेज है उसमें आपने कोई आइडेंटिफायर्स को यूज किया है, कोई स्कीम आपने जो है वो डिफाइन की है, कोई यूनिक आपने स्कीम जो है पहले से आपने जो है वो डिफाइन की होगी, तो उसकी बेस पे ही आइडेंटिफिकेशन होगी ना। क्योंकि अगर कोई स्कीम ही आपने फॉलो जो है वो नहीं की होगी तो फिर तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिफिकल्ट होगी। और मैनुअल जो आइडेंटिफिकेशन है, स्पेशली लार्ज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ही नंबर्स में जो है वो ज्यादा जो है वो होती हैं, तो वहां पे मैनुअल जो आइडेंटिफिकेशन है और सर्चिंग इवन जो रिक्वायरमेंट्स की है वो डिफिकल्ट है। रीजन इज दैट के जो रिक्वायरमेंट्स का डाटा है ये जरूरी नहीं है कि ये डाटा सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही होगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है इनमें जो डाटा आपका है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वो ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वो टेबल्स में भी हो सकता है, और इवन मॉडल्स में भी होगा। और मॉडल्स की अपनी के जो है वो लैंग्वेज होती है, और डिफरेंट जो है वो नोटेशंस जो है वो मॉडल्स के अंदर जो है यूज मॉडलिंग लैंग्वेजेस जो है वो करती हैं। तो इस हवाले से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क जो है वो नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट को आपने जो है वो सर्च करना है और टेक्स्ट को आपने जो है वो एक्सेस करना है। टेक्स्ट तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी हमने सर्च करना हो तो वहां पे फाइंड की एक फैसिलिटी होती है, और वो हमें डाटा को सर्च करने का एक तरह का एक ऑप्शन जो है वो हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अगेन जो डाटा है हमारी रिक्वायरमेंट्स का, जैसे मैंने कहा कि वो डिफरेंट शेप्स में जो है वो होगा, और होता है डेफिनेटली। वो टेक्स्ट में भी होता है, वो ग्राफिक्स में भी होता है, वो इमेज में भी है, वो टेबल्स भी हैं उसके अंदर, और मॉडल्स भी जो है वो आ जाते हैं। तो इस हवाले से अगेन जो प्राइमरी पहले टास्क होता है वो यही होता है कि रिक्वायरमेंट्स की स्टोरेज जो है उसके जब आप मल्टीपल ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो उसकी बेस पे ही आप फ्यूचर में उन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे, सर्च कर सकेंगे, और डेफिनेटली फिर उनके ऊपर डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म जो है वो कर सकेंगे। तो let's discuss this aspect. It is essential for the requirement management that every requirement should have a unique identification.
पहले पॉइंट पे उसने जो है वो बात कर दी कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हर एक हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है उसकी यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन, और ये आइडेंटिफिकेशन स्कीम अगेन यूज़र ने जो है वो डिफाइन करनी होती है। और इसमें भी ऑफ कोर्स टूल सपोर्ट का बड़ा जो है वो अहम रोल होगा, टूल सपोर्ट का बड़ा अहम जो है वो रोल होगा। द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज रिक्वायरमेंट नंबरिंग, जो ट्रेडिशनली हम जो है वो यूज करते हैं टेक्निक के रिक्वायरमेंट्स को नंबर्स जो है वो असाइन कर देते हैं, R1 R2 R3 एंड सो ऑन। ये मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स हम जो है यूज करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल जो मेथड है ये स्मॉल सेट ऑफ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें तो इट वर्क्स फाइन और कोई बड़ा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता। वर्ड के अंदर भी आप रिक्वायरमेंट्स को नंबर जो है वो असाइन जो है वो कर देते हैं। उनके अंदर सब रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको सब रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो डाल देते हैं। बट दिस स्कीम अगेन वर्क्स फॉर स्मॉल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जैसे ही एक प्रोजेक्ट का साइज जो है वो बहुत ही जो है वो बड़ा है और कम्प्लेक्स है, लार्ज नंबर ऑफ जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें वर्ड प्रोसेसर या एक्सेल फिर काम जो है वो नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स की पहले तो स्टोरेज के लिए जो है कोई डेटाबेस की तरफ जाना पड़ेगा, और डेटाबेस में भी फिर आप जो है वो देखेंगे कि आपने जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को जो है यूज करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, या आपने स्टैंड अलोन डेटाबेस को जो है वो यूज करना है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, उस हिसाब से आप जो है वो फैसला करते हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि रिक्वायरमेंट की स्टोरेज जो है, लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है जब आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं तो उनकी जो स्टोरेज है उसके लिए डेटाबेस, कोई ना कोई डेटाबेस सिस्टम जो है वो यूज करना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, या स्टैंड अलोन जो है वो डेटाबेस है। तो डेटाबेस का बेनिफिट आगे हम पढ़ेंगे भी, वो यही होता है कि उसमें फिर जब रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो स्टोर है एक सिस्टमेटिक वे से आपने जो है वो स्टोर की हुई है कोई एक स्कीम को जो है वो यूज करते हुए, तो उनकी फिर फ्यूचर में एक्चुअली जो है वो एक्सेस और सर्चिंग और नेविगेशन और रिपोर्टिंग जो है वो जो है हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। अब यही चीज जो है वो वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर हम करना चाहें तो इनके अंदर बहुत ज्यादा फिर जो है वो लिमिटेशन वगैरह जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे भी अगला पॉइंट, इसलिए मैंने इस पे बातचीत की, द टूल सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब हमने रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई जो है वो करना है तो इसके लिए भी जो है वो टूल सपोर्ट का रोल जो है वो बड़ा जो है वो अहम है। तो आइडेंटिफिकेशन में जो प्रॉब्लम्स हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर जो है वो यूज करते हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स कैन नॉट बी अनएम्बिगुअसली असाइन्ड अंटिल द डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। देखिए ना, ये एक लिमिटेशन जो है वो आ गई कि जो नंबरिंग हमारी होती है उसको जब तक हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट जो है नहीं हो जाता उस वक्त तक हम फाइनलाइज जो है वो नहीं कर पाते। ऑर्डर ऑफ रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, जो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स तो दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ रिलेट करती हैं, उनका कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। एक रिक्वायरमेंट थाउजेंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है वो रिलेट कर रही होती है। तो ट्रेडिशनल टेक्निक या वर्ड के अंदर अगेन अगर हम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो स्टोर करवाएंगे तो उसमें ये रिलेशनशिप्स जो है रिक्वायरमेंट्स के, और लार्ज नंबर ऑफ रिलेशनशिप जब रिक्वायरमेंट्स के अंदर है तो उनको डिफाइन करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, और ऑफ कोर्स इनके लिए फिर टूल की तरफ ही जो है वो जाना पड़ता है, और स्टोरेज होगी तो फिर रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किए जा सकते हैं टूल से। इसी तरह असाइनिंग चैप्टर सेक्शन नंबर्स,
is an implicit classification of the requirement. ये एक implicit जो है वो classification होती है. This can mislead readers of the documents into thinking that the most important relationships are with the requirements in the same sections. तो ये 12 लिमिटेशंस हैं, ये सारी ये उस वक्त लिमिटेशंस हैं. ऑफ कोर्स जब रिक्वायरमेंट्स को हम सिंपली देखें, मोस्टली तो एज यू नो प्लीज के हम मोस्टली तो रिक्वायरमेंट को वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर करते हैं. मोस्टली वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एसआरएस भी जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है वो मोस्टली जो है वो वर्ड के अंदर जो है वो होता है. तो वर्ड के अंदर भी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बड़ी इंटेलिजेंस आई और उसके अंदर भी आपने देखा कि वो कंटिन्यूसली उसको भी जो है वो इम्प्रूव जो है वो कर रहे हैं. लेकिन ऑफ कोर्स उसका अपना एक जेनेरिक स्कोप है. लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये एक डेडिकेटेड टूल अगर होगा, डेटाबेस होगा, जो टूल डेटाबेस को जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा, तो वहां पे ही आप ऑप्टिमम जो बेनिफिट्स हैं इनको गेट जो है वो कर सकते हैं. तो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स जो है ये आपको बताना चाह रहा है, जिसमें ये डायनेमिक नंबरिंग है और डेटाबेस रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन है. तो डायनेमिक्स रीनंबरिंग जो है ये क्या है, इसमें क्या है जी, सम वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम. क्योंकि वर्ड के अंदर भी आपने देखा है कि बड़े जो है वो अपडेट्स जो है वो आ रहे हैं, उनके अंदर भी एक ट्रैकिंग का एक पूरा उन्होंने सब सिस्टम जो है वो डिफाइन जो है वो किया हुआ होता है कि कोई भी चेंज जो है तो उसको आप हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं. तो डायनेमिक नंबरिंग में क्या है कि सम वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम अलाउ फॉर ऑटोमेटिक रीनंबरिंग ऑफ पैराग्राफ्स. जो आपके डिफरेंट जो है वो पैराग्राफ्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो रीनंबर जो है वो कर देता है. एंड द इंक्लूजन ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस, क्योंकि वर्ड के अंदर भी जो है वो क्रॉस रेफरेंसेस की भी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है. As you reorganize your document and add new requirement, the system keep track of cross references and automatically renumbers your requirements depending on its chapter, section and position within the section. तो ये डायनेमिक रीनंबरिंग से कुछ वर्ड के अंदर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, ऑटोमेटिक रीनंबरिंग की रिक्वायरमेंट्स को और पैराग्राफ्स को और सेक्शंस को. अब दूसरी जो है वो टेक्निक क्या है, डेटाबेस रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन. ये आइडियल है. व्हेन द रिक्वायरमेंट इज आइडेंटिफाइड इट इज एंटर्ड इन द रिक्वायरमेंट डेटाबेस. उसको रिक्वायरमेंट डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर किया होता है. एंड डेटाबेस रिकॉर्ड आइडेंटिफायर इज असाइंड. कोई भी प्राइमरी की आप जो है वो असाइन कर देते हैं. दिस डेटाबेस आइडेंटिफायर इज यूज्ड इन ऑल सब्सिक्वेंट रेफरेंसेस टू द रिक्वायरमेंट. तो ये दो पैरल मेथड्स हैं. डायनेमिक रीनंबरिंग्स तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर भी जो है वो अवेलेबल है और डेटाबेस रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक. इसी तरह जो थर्ड टेक्निक है वो क्या है, सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन. अब सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन जो है ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय गिविंग देम अ सिंबॉलिक नेम. सिंबॉलिक नेम क्या होगा, व्हिच इज associated with the requirement itself. For example, EFF1, EFF3 may be used for the requirements which relate to the system efficiency. अब देखें ना, उसने आइडेंटिफिकेशंस के लिए ये एक स्कीम उसने जो है वो डिफाइन कर दी कि जो एफिशिएंसी से रिलेटेड जो है वो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको उसने इस सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन से उसने अपनी एक स्कीम जो है सिंपल वो डिफाइन जो है वो प्रॉब्लम इज दैट मोर देन वन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. मींस के वो एफिशिएंसी को भी रेफर कर रही है, वो सिक्योरिटी को भी जो है वो कर रही है, या किसी और भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के साथ अगर वो जो है उसके मीनिंग्स हैं एसोसिएटेड है
तो उसमें फिर जो सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन है इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाते हैं, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं रहती। अब अगली जो चीज है वो है स्टोरेज ही जो है वो अहम तरीन चीज है। स्टोरेज अगर आपकी होगी तो आपकी आइडेंटिफिकेशन और एक्सेस जो है इसके ऊपर जो है वो सारी जो है वो डिपेंड करेगी। तो requirements have to be stored in such a way that they can be accessed easily and related to the other system requirements. कि requirements को storage अगर जो है वो एक better way से होगी तो of course फिर access और दूसरी requirements के साथ जो relationships हैं उनको identify करना हमारे लिए जो है वो easy होता है। तो अब स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट्स की स्टोरेज के लिए दो ऑप्शन वो हमें जो है वो दे रहा है, जिसमें मोस्टली हम तो जो ऑप्शन ज्यादा जो है वो यूज करते हैं वो इन वन और मोर वर्ड प्रोसेसर फाइल्स, कि आपकी एक या एक से ज्यादा जो है वो वर्ड की फाइल्स होती हैं जिनके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स को जो है वो राइट कर रहे होते हैं या स्टोर जो है वो कर रहे होते हैं। तो मोस्टली तो लोग ट्रेडिशनल इसी ही वे को जो है वर्ड को ही जो है वो यूज कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स को स्टोर करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को जो है राइट करने के लिए। दूसरी जो टेक्निक है वो एक आपका स्पेशली डिजाइंड रिक्वायरमेंट डेटाबेस है। कि रिक्वायरमेंट डेटाबेस एक डेडिकेटेड जो है वो जिसके अंदर टूल की जो है वो सपोर्ट हो और उसमें रिक्वायरमेंट्स को जो है स्टोर किया जाए। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में जब आप रिक्वायरमेंट्स को जो है वो स्टोर करवाते हैं तो इसमें एक तो सिंप्लिसिटी है और कोई आपको जो है वो एडिशनल जो है टूल्स के नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। उस टूल की एक लैंग्वेज होती है, उस टूल की अपनी ट्रेनिंग होती है, उस टूल को यूज़ आपने करना है। फिर अगर किसी डेटाबेस के अंदर रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोर हो रही हैं तो उस डेटाबेस की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है उसका नॉलेज होना, उससे एक्सेस करने के लिए कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना है, एसक्यूएल को यूज़ करना है, ग्राफिकल क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करना है या कोई मॉडलिंग क्यूरी लैंग्वेज है उसको यूज़ करना है। फिर ये नॉलेज जो है ये ज़रूरी हो जाते हैं, जबकि वर्ड के अंदर एक सिंप्लिसिटी है। और ऑफ कोर्स जब स्मॉल साइज के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहां पे फिर हमें किसी डेटाबेस और डेडिकेटेड जो है वो इस तरह की स्टोरेज की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। वहां पे जो है वो वर्ड ही जो है वो सफिशिएंट होता है। तो रिक्वायरमेंट्स आर स्टोर्ड इन द सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे सारी रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोर होती हैं। रिक्वायरमेंट्स मे बी एक्सेस्ड बाय एनीवन विद द राइट वर्ड प्रोसेसर्स, उसकी एक्सेस कोई भी जो है वो कर सकता है। डॉक्यूमेंट है सिंपल, इट इज इजी टू प्रोड्यूस द फाइनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करना जो है वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर इजी और सिंपल एक जो है टास्क होता है। इसी तरह अब इसके ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जो ऑब्वियस हैं। रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसीज मस्ट बी एक्सटर्नली मेंटेन्ड। अब ये वर्ड्स के अंदर ऑफ कोर्स जब डिपेंडेंसीज जो है वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर हैं और बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंडेंसीज हैं तो उनको एक्सटर्नली जो है वो मेंटेन करना, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो मेंटेन करना टाइम कंज्यूमिंग एक जो है वो टास्क है। और ऑफ कोर्स जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज हैं तो फिर लिमिटेशन भी एक जो है वो आ जाती है। इसी तरह सर्च फैसिलिटीज आर लिमिटेड, स्पेशली ग्राफिकल सर्चेज जो है, जब आपने ग्राफिकल सर्चेज जो है वो करनी है तो उसके अंदर वर्ड के अंदर जो है ये एक लिमिटेशन जो है वो आ जाएगी। पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं या और मतलब ग्राफिकल जो है नोटेशंस हैं। नॉट पॉसिबल टू लिंक रिक्वायरमेंट विद प्रपोज रिक्वायरमेंट चेंजेस। तो ये भी क्योंकि ट्रेसिबिलिटी की तो कोई सपोर्ट वर्ड के अंदर नहीं है ना। ट्रेसिबिलिटी के लिए तो जो डेडिकेटेड टूल्स हैं ट्रेसिबिलिटी के वही जो है वो इफेक्टिव
होंगे जो इंटीग्रेटेड विद द डेटाबेसेस जो है वो होंगे। नॉट पॉसिबल टू हैव वर्जन कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। अब देखें ना, इसमें आप एक डॉक्यूमेंट के तो एक पूरे डॉक्यूमेंट के तो वर्जन बना सकते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन थ्री एंड सो ऑन। जबकि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स की जो है जो जो है वो देखना है कि रिक्वायरमेंट जो स्टोरेज की टाइप है। ये क्या है जी, डेटाबेस है। अब इसके भी एडवांटेज भी जो है वो देख लें और डिसएडवांटेज दोनों जो है वो देख लें। तो एडवांटेज की पहले वो बात कर रहा है, गुड क्यूरी एंड नेविगेशन फैसिलिटीज। ऑफ कोर्स डेटाबेस से आप फैमिलियर ही हैं कि जब डेटाबेस के अंदर रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोर होंगी तो सबसे सबसे जो मतलब है कि मेन मोटिवेशन आप कह लें या की जो चीज़ हमें मिलती है वो फास्ट सर्च होती है। फास्ट सर्च होती है कि एक क्यूरी आपकी जो है उससे आप जो है कोई भी डाटा जो है उसको फास्ट वे से सर्च कर लेते हैं। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल आपका कोई सोर्स कोड है जो 10 मिलियन लाइंस का सोर्स कोड है। 10 मिलियन लाइंस का जो है वो सोर्स कोड है, जिसके अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जो है वो क्लासेस है, थाउजेंड्स ऑफ जो है वो क्लासेस है। तो आपने अब इसको डायरेक्ट जो है वो सोर्स कोड से सर्च करना हो कि आपकी कौन कौन सी क्लासेस हैं जो अब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्लासेस हैं, तो ये बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग जो है ये प्रोसेस होगा। आप वहां पे रेगेक्स को या किसी ऐसी फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन जो है वो किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी तो आप एसक्यूएल एक लिखेंगे और आपकी एसक्यूएल जो है वो आपको फास्टेस्ट सर्च और एक्यूरेट सर्च जो है वो प्रोवाइड करेगी। और आपके सामने जो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है वो एक क्लिक के अंदर, चाहे मिलियंस ऑफ क्लासेस है, वो एक ऑर्गेनाइज शेप में आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। जिन लोगों ने मुझसे जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ा है, उन्हें इंटरप्राइज आर्किटेक्ट में ये चीज़ें मैंने दिखाई थी कि कैसे कोड से वो डेटाबेस मॉडल बना लेता है और फिर उस डेटाबेस मॉडल में कोड से रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन आपने एक्सेस करनी होती है तो वो एक एसक्यूएल जो है वो बहुत बड़ा काम जो है वो कर देती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि पीछे जो कोड की इंफॉर्मेशन है वो की टेबल्स के अंदर वो टूल ऑटोमेटिकली जो है वो कोड की जनरेट कर लेता है। इसी तरह ऑफ कोर्स डेटाबेस के जो एडवांटेज हैं इसमें आपकी सपोर्ट फॉर चेंजेस और वर्जन मैनेजमेंट जो आपकी इंडिविजुअल जो है वो रिक्वायरमेंट्स के हैं, डॉक्यूमेंट्स के जो है वो वर्जन्स हैं, रिवीजन्स हैं, मर्जिंग आपने करनी है, रिस्टोरिंग आपने जो है वो करनी है, तो ये चीज़ें जो है वो इजी जो है वो होती हैं। डिसएडवांटेज की बात भी वो साथ कर रहा है, reader may not have the software skills to access the requirement database. Of course, अब वही बात उसने की कि डेटाबेस को जब यूज करना है तो फिर उस डेटाबेस का नॉलेज जरूरी होगा ना, कि वहां पे अगर एसक्यूएल सर्वर को यूज कर रहे हैं, ओरेकल को यूज कर रहे हैं या सिंपल एक्सेस को यूज कर रहे हैं तो एज ए होल फिर उसका नॉलेज होना जरूरी है। वर्ड को तो हर कोई यूज कर लेता है ना, वर्ड में तो इस तरह का फिर नॉलेज की जरूरत जो है वो नहीं होती। इसी तरह लिंक बिटवीन द डेटाबेस एंड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेंटेन्ड। ये एक उसने डिसएडवांटेज जो है वो बताया है कि आपका जो डेटाबेस है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें लिंक्स जो है वो लिंक्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर वो मेंटेन होंगे तो फ्यूचर में जो है वो एक्सेस होगी। अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट पड़े होंगे, डेटाबेस में उनका कोई रिलेशनशिप भी जो है वो नहीं डिफाइंड होगा, तो फिर इस चीज का बेनिफिट जो है
वो नहीं होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो एक से ज्यादा भी जो है वो होते हैं जब प्रोजेक्ट पे आप काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। इफ द सेंट्रल डेटाबेस इज करप्टेड, अब यहाँ पे एक और उसने डिसएडवांटेज जो है वो बता दिया कि अगर हम सेंट्रल डेटाबेस जो है उसको यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर कोई डाटा जो है वो करप्ट हो जाता है कोई, तो द इंटायर हिस्ट्री वुड बी लॉस्ट। तो फिर आपकी जो हिस्ट्री है पीछे वो लॉस जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल बैकअप्स वगैरह लोग जो है वो रखते हैं और इसको अवॉइड जो है किया जा सकता है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ये दो चीजें पढ़ी और ये जर्नल चीजें हैं, ये कोई बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर भी कोई साइंटिफिक चीजें जो है वो नहीं है कि रिक्वायरमेंट को स्टोर करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हैं तो उसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं, और इसी तरह हम डेटाबेस को अगर जो है वो यूज करते हैं तो उसमें फायदे क्या हैं और क्या नुकसान हैं। तो ये चीजें हमने अभी तक जो है वो डिस्कस की। तो यहाँ तक मैं वन साइडेड ही बोलता जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा जी जी वेट स्टूडेंट्स, कोई नहीं बात करेगा। मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन ही ना रहे हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। जी सर। यस सर। जी सर। सबको तक पहुंच रही है ना? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। यस जी यस सर, क्लियर आवाज आ रही है। Yes, sir. चलें जी, गुड गुड। जी सर। Dear students, we are discussing about the requirement identification and the requirement identification techniques and the techniques to store the requirements. The next slide is on the same aspect, that's last about the requirement identification, and then we will move towards the requirement traceability. When you store requirements into a requirement database, there are these are the factors that you have to consider, and these factors are statement of the requirement. The first factor is the statement of the requirement. What does it mean? If there is a need to store more than just a simple text, a database with multimedia capabilities may have to be used. तो ये एक पहला फैक्टर उसने जो है वो बता दिया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें रिक्वायरमेंट्स की स्टेटमेंट्स जो है उनकी नेचर जो है वो क्या है, उस नेचर्स की बेस पे आप रिक्वायरमेंट डेटाबेस फिर जो है वो सिलेक्ट जो है वो करेंगे कि उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट और मल्टीमीडिया की फैसिलिटीज भी जो है वो अवेलेबल हो। इसी तरह नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स की उसने बात की। Large system usually need a database which is designed to manage a very large volume of data running on a specialized database server। कि जब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका वॉल्यूम जो है वो बहुत जो है वो ज्यादा है, तो उसके लिए जो है वो एक स्पेशलाइज्ड जो है वो डेटाबेस सर्वर जो है, एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस
सर्वर जो है जरूरी होगा रिक्वायरमेंट्स की जो है स्टोरेज के लिए। इसी तरह तीसरा फैक्टर जो उसने लिस्ट किया है वो क्या है? टीम वर्क, team distribution and computer support. If the requirements are developed by a distributed team of peoples, distributed team है मतलब डिफरेंट रीजन्स के अंदर अगर वो जो है वो काम जो है वो कर रही हैं. If the requirements are developed by a distributed team of the people, perhaps from different organization, you need a database which provide remote and multi-site access. तो लार्ज सिस्टम्स के लिए पहली बात तो क्लियर है कि रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायरमेंट डेटाबेस के अंदर ही जो है वो स्टोर किया जाएगा, और फिर डेटाबेस के ऊपर उसने ये डिफरेंट फैक्टर जो है वो बताए हैं कि कौन सा डेटाबेस जो है वो ज्यादा जो है वो ऑप्टिमम होगा, फिजिबल होगा. क्योंकि जेनेरिक जो डेटाबेसेस को हम जो है वो यूज करते हैं वो जेनेरिक तो फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के कंटेक्स्ट में कोई रिक्वायरमेंट्स की स्टोरेज के लिए कुछ टूल्स के अंदर जो है वो स्पेशलाइज जो है वो डेटाबेसेस की सपोर्ट जो है अवेलेबल है. तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आपका डाटा रिक्वायरमेंट्स का आपका डाटा जो है वो किस टाइप का है, रिक्वायरमेंट्स का साइज जो है वो क्या है, और उसके ऊपर टीम ने काम करना है, इंडिविजुअल ने करना है, तो उस हिसाब से फिर जो डेटाबेस है उसको सिलेक्ट जो है वो कर लिया जाता है. तो ये दो एस्पेक्ट पे बात हमने कंप्लीट कर ली. पहला वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे था, और दूसरा जो एस्पेक्ट था दैट वाज अबाउट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड द रिक्वायरमेंट स्टोरेज टेक्निक्स. तीसरा एस्पेक्ट हमने बात उसने बता दिया, ये लास्ट स्लाइड जो है कि रिक्वायरमेंट में जो है और इसी तरह एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस को भी यूज जो है वो किया जा सकता है. ये भी एक स्लाइड थी रिमेनिंग इसमें. तो अगला जो एस्पेक्ट है वो है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का. तो ट्रेसेबिलिटी का जनरल कंसेप्ट तो आपको होगा ही, और आपने पढ़ा भी है, और हमने भी जिक्र जो है ट्रेसेबिलिटी का जो है वो हुआ है. लेकिन मैं दोबारा आपको ये रियलाइज जो है वो करवाना चाहूँगा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर पिछले डिकेड में जो काम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो काम है वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी पे हुआ है. रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी पे डजन्स ऑफ लोगों ने जो है वो पीएचडीज की हैं, डजन्स ऑफ टूल्स जो है इसके अंदर जो है वो बने हैं. तो ये बड़ा यंग डिसिप्लिन है, ये भी कोई ज्यादा पुराना जो है वो नहीं है कि आप कहें कि जी ये 90s की बात है या अर्ली 2000 की बात है. तो ये बड़ा रिसेंट जो है वो एरिया है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का. और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में जो अहम तरीन रोल है वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का है. तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट is not possible without the proper support of requirement traceability. So let's first read the definitions. Different लोगों ने खैर definition जो है वो different दी. ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव सबका जो है वो एक ही है. तो IEEE वालों ने जो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो दी, दो कंटेक्स्ट में उन्होंने जो है वो दी, बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी एंड फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, और दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एज ए होल ये ट्रेसेबिलिटी है. तो बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी को इन्होंने सिंपल वर्ड्स में जो है वो कहा ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ ईच, ट्रेसिंग द ओरिजिन्स ऑफ ईच रिक्वायरमेंट. अब ये एक अहम तरीन जो है वो सवाल है. हर एक जो रिक्वायरमेंट है, हर एक जो रिक्वायरमेंट है उसका पीछे सोर्स क्या है,
उसका ओरिजिन जो है वो क्या है, that will be possible through traceability. That will be possible through traceability. फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी के अंदर जो है वो क्या है, ट्रेसिंग द रिक्वायरमेंट to all design implementation artifacts that follow the SRS. फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी के अंदर उसने जो है वो क्या कहा है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट आपके, अब देखें ट्रेसेबिलिटी का पहले भी मैंने आपको जो है वो बताया कि एक तो रिक्वायरमेंट्स फेज के अंदर जो है, एक फेज के अंदर जो है, जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर रिलेशनशिप्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, उनको हम ट्रेसेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाईलाइट जो है करते हैं, नेविगेट जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह जो ट्रेसेबिलिटी है वो जो SDLC के फेजेस हैं, जिसमें डिजाइन फेज आपका है, कोडिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस है, रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है और डेवलपमेंट या कोडिंग का जो है वो फेज है। तो रिक्वायरमेंट्स की ट्रेसेबिलिटी डिजाइन के कंपोनेंट्स के साथ, डिजाइन के मॉडल्स के साथ जो है वो क्या है। अब ये दो फेजेस में जो है वो ट्रेसेबिलिटी है। इसी तरह रिक्वायरमेंट से आप कोड जो है, कोड की तरफ जो है वो जाते हैं। तो हर एक जो रिक्वायरमेंट है वो कोड में जो है वो किन जो है वो आर्टिफैक्ट्स के साथ, क्लासेस के साथ, मेथड्स के साथ जो है रिलेटेड है। तो फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी में वो ये कह रहा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो डिजाइन है या इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनके साथ जो रिक्वायरमेंट का रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसको जो है वो ट्रेस करना। ये बात IEEE वालों ने जो है ये डेफिनेशन जो है ये दी। तो और भी मतलब ये DoD ने ये डेफिनेशन जो है वो दी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी की। A requirement or specification is traceable if it contain or implement all possible stipulations in predecessor documents, जो भी predecessor documents होंगे। A given term, acronym or abbreviation means the same thing in all documents. A given item or concept is referred to by the same name in all the documents. एक ही जो है नेम होगा। All materials in the successor document has its basis in the predecessor documents. That is, no untraceable material has been introduced. The two documents do not contradict each other. तो ये DoD वालों ने जो है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी की जो है वो डेफिनेशन दी, क्योंकि पहले से अगर आप ये स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन करेंगे टूल्स के अंदर, तो फिर ही जो है वो ट्रेसेबिलिटी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को लेटर ऑन आप नेविगेट जो है वो कर सकेंगे या उसका मेजर बेनिफिट जो है वो ले सकेंगे। अब अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि वाई ट्रेसेबिलिटी की क्यों जो है वो जरूरत है। तो सबसे पहले उसने बात की कि जब आपने चेंजेस को जो है वो मैनेज करना है, जब भी आपने जो चेंजेस हैं, चेंजेस को आपने जो है वो मैनेज करना है, तो हमें ट्रेसेबिलिटी की जो है वो जरूरत है। चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस आर नेचुरल, कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो नेचुरल एक प्रोसेस है और वो होंगी, उनको आप डिनाई जो है वो नहीं कर सकते। दे विल बी देयर। अब उनको मैनेज करने के लिए हमें ट्रेसेबिलिटी जो है सपोर्ट जो है वो करेगी, जब हमने चेंजेस को जो है वो मैनेज हमने जो है वो करना है। इसी तरह जब हमने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वैलिडेट जो है वो करना है या रीयूज हमने जो है वो करना है, तो ट्रेसेबिलिटी इज क्वाइट हेल्पफुल
for reusing the requirements and for the validation of the requirements. These the requirement changes may impact design, implementation, testing, and the other artifacts. Top-down propagation of the changes. तो जो मेजर सबसे जो अहम तरीन एस्पेक्ट है ट्रेसिबिलिटी का वो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट एनालिसिस है, इम्पैक्ट एनालिसिस है. दिस इज द की मोटिवेशन फॉर द ट्रेसिबिलिटी के जो भी एक जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज, एक रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो चेंज आती है तो उसका जो इम्पैक्ट है आगे मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, वो इम्पैक्ट जो है वो क्या है, उस इम्पैक्ट को जो है वो देखना, उस इम्पैक्ट को जो है वो विजुलाइज जो है वो करना is the key motivation for the traceability. Explore low-level changes that affect the requirements bottom up. कि कोई भी हमारी जो लो लेवल चेंजेस हैं, जो रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस पे जिनका जो है वो इफेक्ट होता है, ट्रेसिबिलिटी की हेल्प से हम उनको नेविगेट जो है वो कर सकते हैं. इसी तरह वेरिफिकेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डॉक्यूमेंट एक्सेस के लिए, प्रोसेस विजिबिलिटी के लिए और इम्पैक्ट एनालिसिस के लिए. तो ये सारी जो है ये मोटिवेशंस हैं ट्रेसिबिलिटी को यूज करने के लिए. अब जो फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेंगे ट्रेसिबिलिटी की नीड को, तो देखें यहाँ पे भी अगेन मैं वो बात जो है वो रिपीट जो है वो करना चाहूँगा कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए ट्रेसिबिलिटी सपोर्ट का होना ज़रूरी नहीं है. हर एक प्रोजेक्ट के लिए ट्रेसिबिलिटी का होना ज़रूरी जो है वो नहीं है. यही बात मैंने पहले जो है वो रिक्वायरमेंट डेटाबेस के ऊपर भी जो है वो बात की, क्योंकि जब ट्रेसिबिलिटी के आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो इसमें जो है वो कास्ट इन्वॉल्व है, इसमें टाइम इन्वॉल्व है, और वो कास्ट हर एक प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो है वो अफोर्ड आप जो है वो नहीं कर सकते. तो अगर तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और स्मॉल साइज का एक जो है वो प्रोजेक्ट है, तो वहां पे देखें ट्रेसिबिलिटी की एज सच नीड जो है वो नहीं है. लेकिन ऑफ कोर्स एज यू नो कि ये हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं ना, हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, असल इन चीज़ों की मोटिवेशन क्यों जो है वो बढ़ रही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं उनमें उनका साइज और कंप्लेक्सिटी, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये बढ़ रही है. ये आप 2 डिकेड पहले पे देखें सॉफ्टवेयर्स के अंदर कंप्लेक्सिटी का लेवल जो है वो क्या था, एप्लीकेशंस का लेवल क्या था और आज क्या है. उस वक्त ट्रेसिबिलिटी के बगैर काम चल रहा था ना, उस वक्त सिस्टम ही इतने कम्प्लेक्स जो है वो नहीं थे, वो सादा थे, स्मॉल साइज में थे, तो ऐसा नीड जो थी वो नहीं थी. तो जैसे ही ये सॉफ्टवेयर्स का साइज और साइज यू नो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ रहा है, कंप्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, कंप्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. और ये पिछले मतलब डिकेड्स के अंदर एक रिसर्च में एक और चीज़ भी मैं जो है वो पढ़ रहा था, जो आपकी भी मोटिवेशन के लिए भी है और जनरल नॉलेज के लिए भी है. तो हम सारे इस फील्ड के अंदर ही काम जो है वो कर रहे हैं. तो उसमें उसने एक लिखा हुआ था स्टैट जो है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो इनोवेशन इस वक्त दुनिया में हो रही हैं, 70 to 80% का कोट उसने जो है वो यूज किया. जो इनोवेशन जो है वो हो रही हैं रिसेंटली, वो हो रही हैं इस वक्त हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है वो सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. और उनमें फिर मतलब है जो सबसे मेजर जो है वो चंक या चैलेंज है
वो एम्बेडेड सिस्टम्स है, एम्बेडेड सिस्टम्स। तो इन पे मतलब इनके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ रही है। तो एज ए होल जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था वो यही है कि ट्रेसेबिलिटी अगेन इज विद कास्ट प्लीज, ट्रेसेबिलिटी इज विद कास्ट। जब ट्रेसेबिलिटी को आप जो है वो यूज करेंगे तो उसमें कंपनी को जो है वो कोई टूल परचेज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लोग जो है वो रखने पड़ेंगे जो रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन होंगी उनको स्टोर करेंगे। और फिर वो ये भी देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट में कितनी टीम में लोगों ने काम करना है। अगर 2-4 लोग उस पर काम जो है वो कर रहे हैं तो फिर ट्रेसेबिलिटी की क्या जरूरत है। अगर कोई 2-4 महीनों का प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या जरूरत है। ये तो वहां पे ही होगा कि जहां पे एक प्रोजेक्ट साइज जो है वो होगा, उसकी एक ड्यूरेशन होगी, एक कम्प्लेक्सिटी होगी, उसके अंदर एक जो है वो कम्प्लेक्सिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो है वो पॉलिसीज जो है वो होती हैं कि वो किन किन फैक्टर्स के साथ एक सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप करेंगे। तो ये फैक्टर हैं, जेनेरिक हैं। टाइप ऑफ द सिस्टम, एस्टिमेटेड सिस्टम लाइफ टाइम, सिस्टम का लाइफ टाइम जो है वो क्या है, सिस्टम का लाइफ टाइम जो है वो क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ टाइम में वही बात जो है वो आ जाती है कि अगर किसी ने जो है वो सिस्टम को इस विजन से जो है वो डेवलप करना है कि वो जो है वो नेक्स्ट 100 जो है वो ईयर्स जो है वो काम जो है वो करे, और ऐसी स्कोप वो उसकी जो है वो रखते हैं, तो वहां पे देखें इन चीजों की इंपॉर्टेंस होगी, वहां पे इन चीजों की जो है वो इंपॉर्टेंस होगी। वहां पे ट्रेसेबिलिटी और डेटाबेसेस की नीड जो है वो होगी जब लाइफ टाइम इतना जो है वो लंबा होगा। नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है, टीम का साइज जो है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी जो है वो क्या है, और स्पेसिफिक कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है। तो इस बेस पे जो है वो ट्रेसेबिलिटी का डिसीजन जो है वो होता है। तो अगेन इट्स रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये क्लासिफिकेशंस है कुछ ट्रेसेबिलिटी की जो डिफरेंट ऑथर्स ने जो है वो की। बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी, फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी, बैकवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी, एंड फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशंस हैं। पहली टाइप जो है ये क्या हमें जो है वो बता रही है, link requirements to their sources in other documents or peoples। बैकवर्ड फॉर्म ट्रेसेबिलिटी जो है वो क्या है कि रिक्वायरमेंट्स के जो लिंक्स हैं टू अदर सोर्सेज, टू अदर टू देयर सोर्स अदर डॉक्यूमेंट्स, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स। तो एसआरएस स्कोप आपका जो है, तो उनके डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपोनेंट बैक टू रिक्वायरमेंट। ये रिवर्स है, ये रिवर्स है कि डिजाइन से पीछे हमने जो पे आना है। तो ये बैकवर्ड सपोर्ट भी जो है वो होनी चाहिए। ये सपोर्ट कोई प्रोवाइड को ये सपोर्ट होगी। फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी लिंक अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये नीचे उसने डायग्राम से भी इसको जो है एक्सप्लेन जो है वो किया।
वो कौन सा होते हैं, और उसके बाद उसने इसको जो है बैकवर्ड भी आप जो है वो कह सकते हैं, लेकिन उसने फर्दर इनको जो है ये 4 टाइप्स के अंदर इलेबोरेट जो है वो किया हुआ। इसी तरह कुछ ऑथर्स ने इनको जो है वो प्री ट्रेसेबिलिटी और पोस्ट ट्रेसेबिलिटी टाइप्स में भी क्लासिफाई जो है वो किया है। प्री ट्रेसेबिलिटी के अंदर वो क्या कह रहा है जी कि बिफोर एडिंग टू द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करने से पहले की इंफॉर्मेशन जो वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन में क्या सवाल आ सकते हैं, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से ये रिक्वायरमेंट आई है, हु सुजेस्टेड एंड व्हाई, इस तरह के जो सवाल होंगे कि एक रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में राइट करने से पहले जो उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन कहाँ से जो है वो आ रही है। इसी तरह पोस्ट ट्रेसेबिलिटी के अंदर जो है आफ्टर समथिंग इज एडेड टू दी एसआरएस, जब एसआरएस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो है वो ऐड कर देते हैं तो उसके फिर आगे जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस तक जो लिंक है वो क्या है। तो ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वेज से क्लासिफिकेशन जो है वो की है। किसी ने सिंपल फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी में कहा है, कुछ ने ये पिछली स्लाइड में आपने देखा 4 टाइप्स है, और कुछ ऑथर ने इनको प्री ट्रेसेबिलिटी और पोस्ट ट्रेसेबिलिटी में जो है क्लासिफाई जो है वो किया है। तो ट्रेसेबिलिटी में एक और अहम जो एस्पेक्ट यूज होता है वो ट्रेसेबिलिटी जो है टेबल्स हैं। वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत सारे आगे जो है लिस्ट हैं, रेफरेंसेस हैं, लेकिन टेबल ज़्यादा फेमस हैं ट्रेसेबिलिटी के अंदर जो है। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट इन traceability tables, each table relating requirements to one or more aspects of the system or its environment, तो जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट जो सिस्टम्स के एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी सूरत में एक ट्रेसेबिलिटी टेबल के अंदर सिंपली जो है वो स्टोर आप करवा सकते हैं। जैसे R01 है, R02 है, R03 है, RNN है, और इसी तरह A01 एस्पेक्ट कोई है, A2 है। तो टेबल भी एक वे है ट्रेसेबिलिटी टेबल जो है रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्टोर जो है वो करने के लिए। जो अहम एस्पेक्ट एक है ट्रेसेबिलिटी से रेलेवेंट, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगेन अपनी एक ट्रेसेबिलिटी की पॉलिसी जो है, एक पॉलिसी डिफाइन करनी है, और इस पॉलिसी पे लोगों ने जो है वो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो बनाए हुए हैं कि वो ट्रेसेबिलिटी में किस पॉलिसी को जो है फॉलो जो है वो करेंगे। तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज एक्सपेंसिव टू कलेक्ट, एनालाइज एंड अपडेट, मोटिवेशन है नीड टू कंटिन्यूसली अपडेट ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन के इसमें जो ट्रेसेबिलिटी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको कंटिन्यूसली जो है वो अपडेट करने की भी जो है वो जरूरत होती है, और अपडेट्स फिर ठीक हो रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है टूल सपोर्ट की मदद से। ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी इज नीडेड रेलेवेंट टू ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, ट्रेसेबिलिटी टेक्निक्स आगे ये पॉलिसी का पार्ट है कि कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं ट्रेसेबिलिटी की जिनको अडॉप्ट जो है वो किया जाए। व्हेन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कब इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, इसमें रोल जो डिफरेंट लोग होंगे जो ट्रेसेबिलिटी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे डिफरेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस, डॉक्यूमेंटेशन होगी। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट चेंजेस आ रही होंगी उनको मैनेज करने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक ट्रेसेबिलिटी से रेलेवेंट पॉलिसी वो अपनी डिफाइन जो है करते हैं और उसकी अप्रूवल जो है वो लेते हैं। अब ट्रेसेबिलिटी के साथ भी जो इश्यूज हैं वो क्या है। Of course it's expensive, it's obvious it is expensive because you know it requires the tool support, और जब tool support है
तो फिर टूल स्पोर्ट्स के लिए जो है वो डेफिनेटली आप को पे जो है वो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई टूल जो है वो परचेज जो है वो करेगी। तो ये जितने भी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के जेनेरिक जो है वो टूल्स हैं, उनके अंदर अब उन्होंने आके ये ट्रेसेबिलिटी की भी जो इंफॉर्मेशन है या ट्रेसेबिलिटी से रेलेवेंट जितनी भी टेक्निक्स है उनको एम्बेड जो है वो कर दिया है। लेकिन कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड टूल्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं जो सिर्फ ट्रेसेबिलिटी के ऊपर हैं, सिर्फ ट्रेसेबिलिटी को वो सिंपली जो है वो फोकस जो है वो कर रहे होते हैं। इस तरह मोटिवेशन के अंदर वो बात कर रहा है the enablers of traceabilities are not its beneficiaries। ये बड़ा एक सवाल है। वो कहता है कि ट्रेसेबिलिटी के बेनिफिशियरी तो पता नहीं कोई बाद में होंगे, तो जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको जो करंट बेनिफिट्स होते हैं वो उस तरह से ऑब्वियस जो है वो नहीं होते। बेनिफिट्स कम लेटर इन द लाइफ साइकिल एनीवे, जो कि बाद में जो है वो आएंगे। लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा नीड जो है वो होती है टीम में। तो लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वो वैसे ही जो है वो कनेक्टेड होते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इसी तरह मैंने शुरू में बात की कि साइज एंड डाइवर्सिटी जो है, elements to be traced are very diverse and of very large quantity। तो no common schema for classifying and cataloging them। देखें जितनी भी टूल सपोर्ट आ जाए, टूल सपोर्ट की एक तो जरूरत है और टूल सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ भी रही है। लेकिन एक चीज जो ट्रेसेबिलिटी को भी जो है वो हैम्पर जो है वो करता है, वो जब साइज और कम्प्लेक्सिटी अगेन प्रोजेक्ट्स की जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसमें ट्रेसेबिलिटी के अंदर जो है वो विजुअलाइजेशन और विजिबिलिटी, जो कि जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी एक जो है वो प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम होल्ड्स हियर फॉर द ट्रेसेबिलिटी। तो ये ट्रेसेबिलिटी में भी लोग जो है इस रिसर्च प्रॉब्लम्स को काम जो है वो कर रहे हैं। एक तो होता है ना इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा देना, उसको कैप्चर कर लेना, लेकिन उसके बाद अगर वो रीडेबल ही नहीं है, अगर वो विजिबल ही नहीं है, अगर वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, उसमें कंप्रीहेंशन ही नहीं है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन का कोई खास बेनिफिट जो है वो नहीं होता। तो ये भी एक रिसर्च चैलेंज है जो ट्रेसेबिलिटी वाले लोग भी इसके साथ डील जो है वो कर रहे हैं, जिस तरह बाकी रिवर्स इंजीनियर्स जो है वो कर रहे हैं। तो must be done throughout the development and maintenance efforts, means constantly maintain the traceability link, constantly maintain the traceability link। एक continuous जो है वो effort है, cannot stop as soon as the links are outdated, the value diminishes। तो ये इन्वेस्टमेंट है एज ए होल। जो बात उसने की कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती है, फिर बेनिफिट्स जो है वो अचीव जो है वो होते हैं। तो दैट वाज अबाउट द ट्रेसेबिलिटी। बाकी इस पे बहुत ही लिटरेचर है और इस पे बड़ी डेप्थ में भी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन ये जर्नल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है वो लिस्ट डाउन जो है वो की है। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हमारा एज ए होल लेक्चर था, पिछला भी और आज का भी। तो इसके एंड पे जो चैलेंज है वो सेंट्रल रिक्वायरमेंट रिपॉजिटरी जो है उसका होना जो है वो जरूरी है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी स्टोरेज के लिए एक सेंट्रल जो है वो रिपॉजिटरी हो, कुछ सेंट्रल जो है वो डेटाबेस हो। इसी तरह इम्पैक्ट एनालिसिस जो है, जैसे मैंने ट्रेसेबिलिटी में भी बात की कि इम्पैक्ट एनालिसिस की सपोर्ट तो है, लेकिन उस सपोर्ट के अंदर अगेन जो है वो विजुअलाइजेशन का चैलेंज जो है ये हैम्पर जो है वो कर रहा है। बेस लाइनिंग रिक्वायरमेंट जो है ये एक चैलेंज इस वजह से है कि रिक्वायरमेंट्स एक ही रिक्वायरमेंट्स जिन पे कस्टमर्स या स्टेक होल्डर जो है वो पहले एग्री कर लेते हैं, कमिटमेंट जो है वो कर लेते हैं, बेस लाइन जो है वो हो जाती है, दे अगेन रिक्वेस्ट फॉर द चेंजेस and not once, not only once, many times। एक और कोट जो मैं एक जगह पे पढ़ रहा था उसमें उसने लिखा हुआ था कि एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है, एक प्रोजेक्ट के
अंदर जो है 40 to 50% जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो 40 to 50% रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक दफा चेंज जो है वो जरूर होती है। और इसी तरह उसने कुछ नीचे स्टैट दिया हुआ था कि 20% के अंदर जो है 20% या 15% के अंदर जो है वो मिनिमम जो है वो 2 से 3 दफा चेंजेस जो है वो जरूर होती हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ा एक जो है वो चैलेंज है। इसको डिनाई भी जो है वो नहीं किया जा सकता, और इसको कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाए और कहाँ पे फुल स्टॉप जो है वो लगाया जाए, तो ये हमेशा एक जो है वो चैलेंज है। इसी तरह रिक्वायरमेंट वर्जनिंग जो है इसमें किसी हद तक जो है वो जर्नल वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन अभी डेडिकेटेड और स्पेशलाइज्ड जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के लिए हैं वो बहुत ही जो है वो कम है, और उनके अंदर स्टिल कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं। तो इस तरीके से जी ये पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर एज ए होल रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर था, तो ये कंप्लीट हो गया। बल्कि तो ये कार्ली वेजर जो है ना, कार्ली वेजर की जो बुक है इसके अंदर इसने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। बाकी मैंने बहुत सारी बुक्स और देखी हैं, उनमें उसने जो है वो पहले वाले फेजेस को ही जो है वो लिखा है, और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को बहुत ही मतलब कहीं है भी तो एक चैप्टर या स्मॉल चैप्टर के तौर पर है। लेकिन कार्ली वेजर ने ये जो बुक है ये IBM ने जो है वो पब्लिश की हुई है, ये बड़ी अच्छी बुक है। तो इसमें इसने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो लिखे हैं, तो इसको आप ज़रूर जो है वो देखिएगा। ये बुक की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास भी है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं आपसे शेयर जो है वो कर लूँगा, और आई थिंक हमारी शायद लाइब्रेरी में भी होगी, तो वहाँ से भी आप इसको जो है वो बुक को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जी आज तो इतना ही है, ये एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक पे मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एक टूल अब आपने एक्सप्लोर करना है। 2 स्टूडेंट का ग्रुप बना लें, कोई अकेला करना चाहता है तो अकेला कर ले। तो ये टूल पे आपने एक प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है, जो आखिरी लेक्चर्स के अंदर आप जो है वो प्रेजेंट करेंगे। यस सर। तो कोई क्वेश्चन है, कोई बातचीत करनी है, कोई पूछना है कोई, तो बात हम कर सकते हैं। सर आपने जो SVN जी टूल सर। यूज किया है उसके अंदर सिर्फ रिक्वायरमेंट के अलावा भी तो काफी सारे वो ऑप्शंस मौजूद है, यानी वो डेवलपमेंट के सारे फेजेस को कवर करता है जो जी SVN है। जी जी, SVN आप सही कह रहे हैं। SVN जो है वो बल्कि ज्यादा है ही जो है वो कोडिंग के लिए। तो उसमें हमने इस वजह से काम किया था कि जो प्रोटोटाइप हमने एक डेवलप किया था, एक टूल हमने बनाया था, तो उस टूल पे फिर मेरे साथ एक जर्मन था और एक चैनी था, तो हम मिल के जो है वो काम कर रहे थे। तो वहां पे वो बड़ा इफेक्टिव था कि डेली जो भी काम सारे कर रहे होते थे, फिर वो एक पूरी पिक्चर जो है अप टू डेट वो सबको नजर आ रही होती थी। तो SVN बड़ा अच्छा है, ओपन सोर्स है। मैंने बारल ज्यादा उसको, आप सही कह रहे हैं, वो कोडिंग के लिए ही जो है वो यूज किया है। अब रिक्वायरमेंट के हवाले से अगर जेनेरिक पिक्चर्स को देखा जाए तो उसमें सपोर्ट तो है, लेकिन किस हद तक है डेटाबेस की है नहीं है ये मैं नहीं कुछ कह सकता। सर उस तरह जो गिट है वो स्क्रम मॉडल को ज़्यादातर सपोर्ट देता है, उसके अंदर वो स्प्रिंट बैकलॉग और वो जो प्रोडक्ट बैकलॉग की ना वो मौजूद है ना, वो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट की प्रेजेंटेशन के लिए वो वाला टूल। अच्छा, गेट जो है, ठीक है, ठीक है, आपने यूज किया है? जी सर मैंने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया हुआ, उसका TFS एक्सटेंशन है एक, वो क्या कहते हैं विजुअल स्टूडियो .NET के साथ कंपैटिबल है, वो मैंने बहुत दफ़ा यूज़ की हुई है। गुड, ठीक है, ठीक है।
सर आपसे कहना था कि वो आप ये वाली स्लाइड लास्ट लेक्चर मैंने जो सी पढ़ाई थी यही वाली स्लाइड यानी कि आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा याद से, और जो सी ये बुक है दोनों वो जी भी शेयर प्लीज कर सर। दूंगा, ये दोनों मैं इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा, पिछली भी और आज की भी। जी सर, और सर बुक भी याद से प्लीज। बुक तो खैर बड़े साइज में है, मैं देख लूंगा वो। सर ये ओपन सोर्स अवेलेबल होगी क्या? ओपन एक्सेस मुश्किल है, आईबीएम की है, मुझे अब कंफर्म नहीं, मैंने ये ली थी असल में कोई 5-6 साल पहले, लेकिन मैं प्रोवाइड कर दूंगा किसी तरह आपको ना, कोई गूगल ड्राइव के थ्रू या किसी तरह, क्योंकि वो इस तरह तो शेयर नहीं होगी, पूरी बुक है ना बेटा। सर मेरे पास ये जी बुक सर। अवेलेबल है वैसे पीडीएफ फॉर्म में। चलें फिर तो मसला ही खत्म हो गया फिर तो ये फुआद ठीक के सर। पास है तो जी शेयर सर मैं कर। शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, गुड। अच्छा सर थैंक यू। पूछना था फाइनल्स के हवाले से कि जो वैसे हमारा सेमेस्टर जो एंड हो रहा है वो तो तकरीबन दिसंबर के लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। जी जी। तो फाइनल्स जो है वो 4 जनवरी से जो हमारा कैलेंडर है उसके मुताबिक है, और लॉकडाउन की जो डेट्स हैं वो तो उससे थोड़ा सा आगे की हैं। तो फाइनल्स का कोई डिसीजन है अभी साइट में, या कोई आपके पास इंफॉर्मेशन हो? फाइनल देखो जी, डिसीजन हो चुका है, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि मिड टर्म फाइनल ये सारे ऑनलाइन होंगे और एज पर स्केजुअल ही होंगे। अच्छा अच्छा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चल, चेंज। थैंक यू। जी। तो ठीक है जी, फिर आप करें, और पीएचडी स्टूडेंट्स कल एज पर स्केजुअल मीटिंग होगी, तो कल इंशाल्लाह जो आपका स्केजुअल है उसमें प्लीज प्रिपेयर होके आ जाएं। ओके सर जी इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। काफी सर। अल्लाह हाफिज सर। मुदब्बर भाई आप